Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening to all of you. My dear students, today we are going to learn one of the most important chapter in Arabic grammar called Al-Jins. What is jins? That I'm going to explain the whole chapter and all types of jins in Arabic grammar. And I'm going to compare in this chapter with English as well as Urdu. Will make you understand everything. Just you all need to stay tuned and be connected with me till the end of class. Dear students, normally there are two types of gender. Let's call jins, al jinsu, the gender. Normally there are two types of gender. That's we call male or female. In Arabic we can say al muzakkar wal muannas. Basically, there are two types of gender, but here we have different kind of classification of gender that I'm going to explain it tonight sequentially. Just see what the chapter tells you. Actually, here the text is written. This lesson explains the different categories of gender used for Arabic nouns according to the Arabic grammar, and the gender is classified into the following four category. What I said to you in early phase of this class, that there are normally two types of gender of noun, male or female. But what we see in grammar, there are four kind of categories. We will see by their names as well as with different kinds of example. Just let's continue. The very first type of noun gender, that's called al jinsul haqiqi, the real gender. Actually, at first we will see in English, the word related to the male sex are muzakkar, masculine, that's we call in English, and those related to the female sex are called al muannas. Here the sign is given. See over here, you can see clearly, uh, the sign of muzakkar is this. See, can you see that one? If I tell you, if you can see that one over here, and this sign is for muannas. Can you see female? Yes, over here, right? So just I'm going to explain you. This is a sign of muzakkar, and this one is muannas. Can you see that? Right. Okay. For example, rajulun, man, is the real masculine, and imraatun is a woman, is the real feminine. Let's see. जिस मुजक्कर के मुकाबले में कोई मुअन्नस हो, उसे हम जिनसे हकीकी कहते हैं, या इसे आप मुअन्नस हकीकी कह सकते हैं. मसलन औरत, इसके मुकाबले में आता है मर्द, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुअन्नस हकीकी, एज वी कैन सी इन इंग्लिश अल जिन्सिल हकीकी, राइट? सो ओवर हियर द सेम थिंग इज रिटन. द वर्ड रिलेटेड टू द मेल सेक्स इज कॉल्ड मुजक्कर. जिसके मुकाबले में, सी, जिसके मुकाबले में, औरत के मुकाबले में मर्द आता है, तो डेफिनेटली ये एक्चुअल है, मतलब बाय द नेचर इट हैज गिवन, राइट? सो वी कैन से अल मुजक्कर, then we can say al muannas. We continue. See over here, some more example has been given. Yes, you have to focus. Dikun, that's called cool, and murga, and dajajatun, that's we call hen murgi. Murgi in Urdu, dajajatun in Arabic, and hen in English. Waladun, boy, ये एक्चुअल है, और इसके मुकाबले, लड़का के मुकाबले में क्या आता है? लड़की आता है, दैट्स बिंत, लड़की आती है, बिंतुन. अबुन, वालिद, इसका उल्टा क्या होता है? उम्मुन, यानी जिसके मुकाबले में, एक दूसरे के मुकाबले में. मदर हो गया आपको उम्मुन का ट्रांसलेशन, एंड वी कैन से अखुन, ब्रदर, एंड दैट्स वी से उख्तुन. लेट्स फोकस once again. Every word that is given as example, the actual meaning in English has been written. For example, rajulun means आदमी, इमरातुन मीन्स औरत, दीकुन मतलब मुर्गा, दजाजतुन मतलब मुर्गी, बिंतुन मतलब लड़की, अबुन मतलब वालिद, उम्मुन मतलब वालदा. Over here the mother is written, over here the father is written, girl is written, boy is written. अखुन मतलब brother, उख्तुन मतलब sister, right? It was the first kind of gender, that's called al jinsil haqiqi. Let's continue to the second kind. The second kind that comes in Arabic grammar, that's called al jinsil majazi.
Formal gender. What is formal gender? Let's see. The noun which do not have the concept of pair are termed as feminine or masculine by the जिन्सल मजाजी, जिसके मुकाबले में कोई नर या मादा नहीं हो। सी द पेयर जिसका नहीं बनता है। अब मान के चलिए कलम है, तो इसका मुअन्नस क्या बनेगा? तो इसीलिए हम कहते हैं फॉर्मल, जिन्सल मजाजी, राइट। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर फॉर सच नाउन इज दैट वर्ड एंडिंग विद राउंड था। ऐसे लफ्ज को जो मुअन्नस बनता है जिसे हम जिनसे मजाजी कहते हैं, उसकी पहचान होती है राउंड ता से। गोल ता उसके आखिर में होगी, उसके आखिर में गोल ता होगी। कैन यू सी ओवर हियर द गोल ता? यस, दिस वन। फॉर एग्जाम्पल मिरवाहतुन, कैन यू सी? शजरतुन, हियर द गोल ता इज गिवन। सय्यारतुन, जन्नतुन, साअतुन। तो ऐसे जिनसे मजाजी की हम पहचान क्या करते हैं? गोलता से, जिसके लास्ट में क्या होती है? गोलता होती है। सो नाउन विच डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर, ये इस वर्ड को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर, ये जोड़ा नहीं बनता है। ये यहां देखिए पेयर, पेयर ओवर हियर, टर्म्ड एज फेमिनिन और मैस्कुलिन। चलिए, विल सी सम एग्जाम्पल। सो एज वी सी, साअतुन मुअन्नस, दैट मीन्स ऑफ साअतुन, साअतुन का मतलब था वॉच, घड़ी। मिरवाहतुन मतलब पंखा यानी फैन। शजरतुन यानी दरख्त यानी ट्री। सय्यारतुन मतलब गाड़ी यानी कार। जन्नतुन मतलब गार्डन। ओवर हियर अगेन द ता इज राउंड ता इज गिवन। आयतुन मतलब निशानी, साइन इंग्लिश। हयातुन मतलब जिंदगी यानी लाइफ। नाफिजतुन मतलब खिड़की यानी विंडो। आर the feminine gender because of that golta. Can you see that golta again? If I tell you, can you see that golta in everywhere? Right. Let's continue. वो अपनी बनावट की वजह से, by the form, form का मतलब बनावट। And jidarun that has not golta over here. Kitabun that is not golta. Qalamun that has not golta. Siratun that has not again golta. Masjidun that has not golta. बैतुन that is not गोलता, इसको राउंड ता बोलते हैं, लंबी ता बोलते हैं, गोलता नहीं है। हाउस, कुर्सीयुन चेयर, नहरुन कैनल, बाबुन दरवाजा यानी डोर, etc are the example of, and that has been considered, those all words are considered as a masculine gender। यानी जिनके आखिर में गोलता होगी तो उसे हम समझेंगे ये फेमिनिन जेंडर है, और जिसके लास्ट के अंदर क्या होगा, ऐसा गोलता नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मुज़क्कर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। इस तरह के लफ्ज़ को हम जिन्सल मजाजी कहते हैं। इट मे ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट द फेमिनाइन जेंडर इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम मैस्कुलिन बाय सफिक्सिंग ता। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हैं, जैसे मुस्लिमुन मतलब होता है मुसलमान, लेकिन जब इसमें हम गोलता ऐड कर देंगे, व्हेन वी ऐड गोलता इन द वर्ड मुस्लिम, इट विल टर्न इनटू द फेमिनिन जेंडर। करेक्ट। सी ओवर हियर द एग्जांपल इज गिवन। मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन मुअन्नस, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर हो गया। मुस्लिमुन यानी फीमेल मुस्लिम, राइट, ये सिर्फ मुस्लिम हो जाएगा और ये फीमेल मुस्लिम हो जाएगा। काफिरुन डिसबिलीवर, काफिरतुन मतलब भी डिसबिलीवर, लेकिन ये मुअन्नस। सादिकुन मतलब ट्रूथफुल यानी सच्चा। सादिकतुन मतलब भी ट्रूथफुल बट फीमेल। सालिहुन मतलब नेक, पायस। सालिहतुन मतलब भी नेक, लेकिन ये मुअन्नस। लाइक इब्नुन, इब्नतुन, तालिबुन, तालिबतुन, जदीदुन, जदीदतुन, कदीमुन, कदीमतुन, राइट। तवीलुन, तवीलतुन, कसीरुन, कसीरतुन। एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग राइट बिहाइंड दैट वर्ड। हर लफ्ज का माना लिखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड काइंड ऑफ जेंडर इज कॉल्ड अल जिन्सुल लफ्जी। मा हुआ अल जिन्सुल लफ्जी? दैट्स कॉल्ड इन इंग्लिश एक्सेप्शनल केस। व्हाट इज एक्सेप्शनल केस? सी द नाउन विच डू नॉट फॉल अंडर द अबव मेंशन्स टू कैटेगरीज आर टर्म्ड एज एन एक्सेप्शनल केस। सी, जो ऊपर गुजरा है, ऊपर कौन सा गुजरा है? अल जिन्सुल हकीकी और अल जिन्सुल मजाजी। इस दोनों अल जिन्सुल हकीकत में क्या था? जिसके मुकाबले में मुज़क्कर आते हों,
वो हम उसे मुअन्नस कहते हैं, यानी मुअन्नस हकीकी। जैसे आप एक्चुअल जेंडर कहेंगे, रियल जेंडर। एक ऐसा जेंडर जिसके लास्ट में गोलता हो, वो जिनसे मजाजी समझा जाता है, फॉर्मल जेंडर। इस दो कैटेगरी के अलावा वी हैव द थर्ड कैटेगरी ओवर हियर कॉल्ड अल जिन्सुल लफ्जी। सो जो इसके अलावा आता है उसे हम जिन्सुल लफ्जी कहते हैं। सी द फॉलोइंग नाउन्स आर फेमिनिन बाय यूजेज इवन दो द नो राउंड था एंडिंग नॉर हैव देयर पेयर कॉन्सेप्ट। बहुत सारे नाउन को मुअन्नस समझा जाता है, उसके लास्ट में ता न होने के बावजूद भी। उसे हम एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं, या आप अरबी में एक और टर्म दिया जाता है अल मुअन्नस अस्सिमाई, यानी जो हमने अरब से सुना है उसको, उसे हम मुअन्नस सिमाई कहते हैं, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में एक्सेप्शनल केस कहा गया है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, उनकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है विद देयर मीनिंग्स। कैन यू सी द समाउन, मतलब आसमान, ये मुअन्नस है, जबकि इसमें गोलता नहीं है। हरबुन, गोलता मुअन्नस की अलामत होती है। शमसुन मुअन्नस है। नारुन मतलब आग। जहन्नमुन मतलब जहन्नम। रिहुन मतलब हवा, ये भी क्या है, मुअन्नस है। खमरुन शराब। नफ्सुन नफ्स सोल, ठीक है। पर्सन के माने में भी आता है। दारुन घर। बिरुन कुआं। कसुन कप। आसा स्टफ। तागूत नाइडल, एक बुत का नाम है, टायरेंट, डेविल शैतान। रुया, ये कि इन सब में जो है ना गोलता नहीं लगी हुई है, इसके बावजूद ये मुअन्नस कहलाते हैं, क्योंकि अरब से हमने ऐसे ही सुना है। कुछ यहाँ पर अलग से इसके तहत रूल बनाए हैं। प्रॉपर नेम्स ऑफ कंट्रीज टाउन्स आर फेमिनिन। कुछ कंट्रीज के नाम और उनके शहरों के नाम मुअन्नस समझे जाते हैं, आर फेमिनाइन। जैसे पाकिस्तान मुअन्नस है, मिस्र मुअन्नस है, लाहौर टाउन शहर का नाम है, अमेरिका मुअन्नस है, वाशिंगटन मुअन्नस है, अल इराक मुअन्नस है। मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पेशली दोज आर इन पेयर टर्म्ड एज फेमिनाइन। देखिए इंसान के जिस्म में जो दो जोड़े में आज़ा हैं, यानी वो जिनका पेयर है, यदुन, अब दो है, इंसान के पास दो हाथ होता है, दो आँख होती है, दो पैर होते हैं, है ना, दो कदम होते हैं, दो पिंडलियाँ होती हैं, दो कान होते हैं, दो गाल होते हैं, यानी वो जो दो दो है इंसान के बॉडी के अंदर, वो सब मुअन्नस समझे जाएंगे। वो इंसान के वो जिस्म के आज़ा जो दो हैं, तो हाथ दो है, यदुन मतलब हाथ, आइनुन मतलब आँख, कदमुन मतलब फूट, रिजलुन मतलब लेग यानी पैर, और इसका मतलब भी पैर होता है। साकुन मतलब पिंडली, शिन जिसको आप कहते हैं, ये भी दो है, दो पिंडली है, एक इस पैर की, एक इस पैर को। उज़ुनुन मतलब कान, दो कान है आपके पास। खद्दुन मतलब चीक यानी गाल, ये भी दो हैं। तो इस इंसान के जिस्म के दो आज़ा, ये आपको सिर्फ याद रखना है ध्यान के लिए, आपको समझाने के लिए। वो इंसान के आज़ा जो दो होते हैं, पेयर में होते हैं, उसे हम मुअन्नस कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। नाउन्स एंडिंग विद या और या कॉल अलिफ मकसूरा, शॉर्ट अलिफ। मकसूर मतलब होता है छोटा, और अलिफ और हमजा के साथ जो होता है उसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। लेंथेंड अलिफ यानी इसको खींच दिया गया, लेंथ मतलब होता है बड़ा करना। और ऑल्सो फेमिनाइन, मिसाल के तौर पर हुस्न, या के साथ खत्म हुआ, गुड ब्यूटीफुल वुमेन के माने में आता है। कुबरा ग्रेट के माने में आता है। सुगरा बुशरा, है ना, सहरा ज़र्रा ज़हरा बैज़ा हज़रा ज़रक़ा, यानी ऐसे जो या हमज़ा और अलिफ के साथ ख़त्म होते हैं वो भी मुअन्नस समझे जाते हैं, उसे भी मुअन्नस कहा जाता है। आगे चलिए। ऑल अरबिक लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आर कंसीडर्ड एज फेमिनिन। अरबी के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स हैं अलिफ से लेकर या तक, वो सब मुअन्नस समझे जाते हैं। दे आर 29, वो सब 29 हैं। सम ब्रोकन प्लूरल्स, कुछ तोड़े हुए प्लूरल्स। अब तोड़े हुए प्लूरल्स का मतलब कि उसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर, सॉरी, जमा मुकस्सर। सम ब्रोकन प्लूरल्स अल यहूद, अर्रुसुल, यहूदियुन से यहूद, अन्नसारा क्रिश्चियंस, दे आर ऑल्सो फेमिनाइन जेंडर।
तो रसूल था असल में, ये जमा मुकस्सर होने की वजह से और रसूल हो गया, जैसे कुरान के अंदर इस्तेमाल किया तिलकर रसूल फज़लना बअदहुम अला बअज़। सम कलेक्टिव नाउन्स, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स। कौमुन मुअन्नस होता है, रहतुन मुअन्नस है, यूज्ड एज फेमिनाइन जेंडर, बट देयर आर सम एक्सेप्शन एज वेल। अहलुन और आलुन ये भी फैमिली के माने में आता है। हाउएवर अहलुन और आलुन मीनिंग ऑफ फैमिली फेरोगनी आर मैस्कुलिन। इस लफ्ज को ध्यान रखना है आपको। अहलुन और आलुन कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद ये क्या है, इसको थोड़ा हाईलाइट मैं कर देता हूँ, अब इसको थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे, और ये सब जो है वो है, इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। यहाँ देखिएगा कौमुन रहतुन आर फेमिनाइन, जबकि अहलुन और आलुन जिसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है और मैस्कुलिन, याद रखिएगा। अब देखिएगा कुछ एक्सेप्शनल मैस्कुलिन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, कुछ अपवाद है, कुछ इस्तिस्ना है, कुछ एक्सेप्शनल है, उसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने। यू हैव टू वॉच वेरी क्लियरली। करेक्ट। ओवर हियर सी एक्सेप्शनल मैस्कुलिन, सम नाउन्स हैव देयर एंड विथ ता, राउंड ता, एंडिंग विथ, बट दे आर यूज्ड एज मैस्कुलिन। कुछ नाउन के लास्ट में होता है गोलता, जबकि अभी हमने पढ़ा है कि गोलता मुअन्नस की अलामत होती है, लेकिन मुअन्नस की अलामत होने के बावजूद एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल केस है, वो मुज़क्कर ही कहलाते हैं, जबकि आम तौर पर 90% केस के अंदर गोलता वाले जो लफ्ज़ होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। ऑल दोज वर्ड विच कम्स विद राउंड ता विल बी कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल where we can understand the some noun ending with round ta, they will anyhow will be called masculine gender, like khalifatun है ना, khalifa, allamatun, usama, salama, like these words are called masculine gender despite of having round ta. some parts of the body single, जो कि सिंगल होते हैं, जैसे रअसुन, सिन्नुन दांत, बतनुन पेट, सदरुन सीना चेस्ट, आर ऑल्सो कंसिडर एज ए एक्सेप्शनल मैस्कुलिन जेंडर। इंसान के बॉडी के वो हिस्से जो एक हैं उसे भी हम एक्सेप्शनल मैस्कुलिन जेंडर ही कहेंगे। उसमें कौन कौन है? इंसान का सर, सिन्नुन मतलब दांत, बतनुन मतलब पेट, सदरुन मतलब सीना, और एक्सेप्शनल मैस्कुलिन जेंडर। लेट्स कंटिन्यू। इसमुल जिन्स, दैट्स कॉल्ड कॉमन जेंडर। सम नाउन्स आर यूज्ड एज मैस्कुलिन एज वेल एज, कुछ जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश में से कोई एग्जाम्पल दूं तो डॉक्टर हम लड़का को भी बोलते हैं और लड़की को बोलते हैं, देयर शी इज़ डॉक्टर, है ना। और इस तरीके से बेबी, बेबी इज़ ए वर्ड जो हम लड़का के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टीचर, है ना। तो ऐसे हैं, इसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। अरबी के अंदर भी कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो दोनों में मुज़क्कर बोले जाते हैं और मुअन्नस। देयर आर सम वर्ड्स दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैस्कुलिन, यूज्ड एज मैस्कुलिन और फेमिनिन। लेट्स सी दोज वर्ड्स। आइए उन कुछ लफ्ज़ों को देखा जाए। क्लियरली ओवर हेयर रिटन सम नाउन्स आर यूज्ड एज मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन। कुछ नाउन्स मैस्कुलिन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, फेमिनिन भी इसके। दीज आर टर्म्स एज इस्मुल जिन्स, जिसे हम इस्मुल जिन्स यानी इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहते हैं। मसलन सहाबुन मतलब होता है बादल यानी क्लाउड, बकरुन यानी कैटल यानी गाय, ये भी मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी। जरादुन यानी टिड्डी, लॉक्टस, ज़हबुन यानी सोना, नहलुन यानी कि बीज, मधुमक्खी, शजरुन यानी ट्री, अब ये मुज़क्कर भी इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मैस्कुलिन बाई फॉर्म, फेमिनिन बाई सिग्निफिकेशन। ये याद रखिएगा, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देयर आर सम एक्सप्लेनेशंस अबाउट एक्सेप्शनल केस जो हमने ऊपर पढ़ा है। एक्सेप्शनल केस क्या पढ़ा है हमने, थोड़ा उसको देख लीजिए ऊपर। यही अलजिन्सुल लफ्ज़ी जो अरब से हम सुन, जिसको हमने कहा था अरबी के अंदर मुअन्नस सिमाई। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जिनकी ज़बान होती है ना, यानी अरबी जो है अरब की ज़बान है, तो अरबी जब अरब की ज़बान है तो जो हम उनसे सुनेंगे वही हम पढ़ेंगे। तो हमने कुछ लफ्ज़ को अरब से मुअन्नस सुना है तो हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ देयर ऑन नेटिव लैंग्वेज। वही बात मोटा मोटी यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ज़रा देखते हैं राइटर क्या कहते हैं इस किताब के अंदर। एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस यानी कि वही मुअन्नस सिमाई के बारे में कुछ बात बता रहे हैं। हियर आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एक्सेप्शनल केसेस
इन द ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स में हम कुछ एक्सेप्शनल अपवाद के बारे में बता रहे हैं। द लर्नर शुड बी माइंडफुल, पढ़ने वाले को बहुत एक्टिव रहना चाहिए, ऑफ द फैक्ट, हकीकत के बारे में, दैट द लैंग्वेज हैव नॉट कम इनटू बीइंग थ्रू द एकेडमिक प्रोसेस, जो लैंग्वेज है वो एकेडमिक प्रोसेस से नहीं आता, बेस्ड ऑन सम है ना प्री डिटरमाइंड सेट्स ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड फॉर्म्स, जिसकी बुनियाद कोई कायदा कुल्लिया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी, उसके साथ साथ द लैंग्वेज आर स्पोकन बाई देयर नेटिव्स, ये जो बात मैं बोलता है जो उनकी ज़बान है, ऑफ द रीजन लॉन्ग बिफोर ग्रामेरियंस फॉर्म और ग्रामेटिकल सोल। देखिए ग्रामर बनाने वालों से पहले जिन लोगों ने जिस ज़बान को जैसे बोला है उसी को उसी तरीके से समझा जाता है। फ्रेमिंग ग्रामेटिकल रूल्स, इनके बनाने से पहले हम उनकी तरफ जाते हैं जो इसको जिनकी ज़बान है, इज़ एसेंशियली टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस बाय द नॉन नेटिव्स, ताकि नॉन नेटिव्स के द्वारा अच्छी तरीके से समझ लिया, और फॉरनर। बट वेयर दे फेल टू अप्लाई यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, दे कैटेगराइज एज एक्सेप्शनल केस, जहां उनको लगता है कि इसको क्या नाम दे दिया जाए, यानी कि अब ये मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है, इसमें कोई रूल नहीं है, उसको वो लोग एक्सेप्शनल केस कह देते हैं। हेंस इसीलिए द एक्सेप्शनल रूल्स इज अ कॉमन फीचर टू ऑल द लैंग्वेज। देखिए सब में होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिया डॉक्टर, अब वो लोग क्या नाम देंगे इसको, कौन सा नाम देंगे इसको, उन्होंने कॉमन जेंडर कह दिया। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद आई मस्ट हैस्टन टू एम्फेसिस, मुझे इस बात को बताने में जल्दी करनी चाहिए, जोर देनी चाहिए, दैट द ग्रामेरियंस ऑफ अरबिक लैंग्वेज have contributed tremendously in facilitating the learning process of the language। अरबी ज़बान के अंदर जो माहिरीन हैं उन लोगों ने इसको आसान करने में बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से काम किया। इनफैक्ट दे हैव डेवलप्ड एन ईजी एंड effective methods of learning and classic Arabic of Holy Quran, hence their efforts cannot be undermined in any way। जिन लोगों ने अरबी ज़बान पे काम किया है उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, इसलिए उनकी कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दे हैव डन सम ट्रेमेंडस वर्क इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबिक लैंग्वेज, स्पेशली क्लासिकल अरबिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।